Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class student. Today date is 5th January 2022 and I am teaching you chapter number 17. Name of the chapter, The Earth and Sky. Take out your rough copy also when you are watching the video so that you can note down the important points from the board. Okay, so before starting, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, we discuss why our planet is known as a unique planet. So reason is that life is possible. There are 8 planets, but out of these 8 planets, Earth is the only planet where life is possible. Okay, and then we discuss about the type of surface which is present on the earth, that is hills. Somewhere we see hills, somewhere we see mountains, plateaus, valleys, desert, okay, and water bodies. And if we see the surface of the earth, student, then 72% of the surface of the earth is covered with the water and only in 28% that is the land, and which is also not the same. Somewhere we see hills, somewhere we find mountains, plain, desert, valleys, plateaus. Okay, so different type of a desert we observe on the surface of the earth. Okay, now after that we discuss, student, the earth is surrounded by a layer of air and this is known as atmosphere. Okay, the earth is surrounded by a layer of earth and this is known as atmosphere, we discuss. Okay, next important thing which we discuss in the previous video is that the distance of earth, or you can say the distance of sun from the earth, that is the right distance. Okay, if the sun is very close to the earth, then what's happen? Due to the heat of the sun, all the due to the heat of the sun, the life is not possible on the planet. In the same manner, if the sun is very far away from the earth, then also the temperature of the earth is very cool, and due to this also the life of the plant and animals life would perish. Okay, perish मतलब होता है खत्म हो जाना या नष्ट हो जाना. ठीक है, so that is the reason the distance of the sun from the earth, that is the right distance, and this due to this only the life is possible on our planet, that is earth. Okay, now student, we will discuss about the solar system. Now we will discuss solar system. Okay, so before discussing solar system, let's understand planet. What is planet? Okay, so any natural object, any natural object, you can note down in your rough copy this important points, or with the help of a pencil you can also underline in your book also. Any natural object that revolves around the
the sun. Okay, is called it a planet. So what is a planet? Any natural object, because it is not man made, इसलिए इसे नेचुरल बोला गया है. ठीक है, देखो जैसे हमारे सराउंडिंग में बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हमने बनाई हैं, तो डेट आर मैन मेड, और दीज आर थिंग्स आर प्रेजेंट इन द नेचर. सो एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स राउंड द सन इज कॉल्ड इट ए प्लैनेट, एंड दे आर टेकिंग राउंड ऑफ द सन. ये सन के चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, कौन? प्लैनेट्स. एंड नंबर ऑफ प्लैनेट्स 8. How many planets we have? We have 8 planets. Okay, and all these 8 planets, they revolves round the sun. ठीक है, ये सन के चारों तरफ क्या है, ये सारे के सारे प्लैनेट्स क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं, राउंड ले रहे हैं सन का. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज अ सोलर सिस्टम. तो व्हाट इज अ सन? तो सन समझ लो बेटा, प्लैनेट तो बता दिया. सन क्या है? स्टार है. ओके, व्हाट इज सन? सन इज ए स्टार. ओके, so it give us light also, and it give us heat also, and this is due to the burning of the gases. ठीक है, तो सन क्या है? स्टार है. तो बेटा हमारे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, बहुत से स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स में. इज इट क्लियर? सो बट ये जो वी आर डिस्कसिंग, सन भी क्या है? स्टार है. तो मतलब यूनिवर्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सन ही एक स्टार है, सन से बहुत बड़े बड़े स्टार भी हैं. लेकिन आप सोचते हो कि जब सन से भी बड़े स्टार हैं, इतने ज़्यादा स्टार हैं, और सारे स्टार्स की अपनी लाइट और हीट होती है, सो तब तो बहुत ज़्यादा हीट आनी चाहिए थी अर्थ पे. ऐसा क्यों नहीं होता है? तो रीज़न इज डैट दीज स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम आवर अर्थ. ठीक है, ये स्टार्स जो है हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है. दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. ओके, सो एट द नाइट टाइम दीज स्टार्स आर विजिबल इन द स्काई. कुछ ट्विंकल ट्विंकल आप लोग को चमकीला सा दिखता है ना, लाइट. तो जो ये जो लाइट होती है, यही लाइट किसकी है? स्टार्स की है. देखो, और पूरी स्काई जब क्लियर नाइट होती है तो पूरी स्काई में दिखाई देते हैं स्टार्स की लाइट. तो इसीलिए जो हमारी पूरी यूनिवर्स है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं. ठीक है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम, सो द सन, द फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड इट द सोलर सिस्टम. ठीक है, फैमिली ऑफ द सन इसलिए बोला क्योंकि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, दे रिवॉल्व्स अराउंड द सन. दीज प्लैनेट रिवॉल्व्स राउंड द सन. दैट इज द रीजन हमने इन्हें क्या बोला? फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड इट द सोलर सिस्टम, एंड इट इज मेड अप ऑफ सन, 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स. ठीक है, सो what is solar system? The family of the sun is called it solar system. It is made up of
it is made it is made up of it is made up of the sun. What is present in the solar system? That is sun, 8 planets, and their moons. Okay, so the family of the sun, and why we use this word, the family of the sun, because there are million and billion of stars in the universe. So but these 8 planets, they revolves around the sun. ये जो 8 planets हैं, ये किसके चारों तरफ राउंड मार रहे हैं? सन के. इसलिए हमने इसको सन की फैमिली बोला. इज इट क्लियर? दैट इज द रीजन हमने इसको क्या बोला? द फैमिली ऑफ ए सन. एंड दिस फैमिली ऑफ द सन इज नोन एज सोलर सिस्टम. एंड इट इज मेड ऑफ सोलर सिस्टम. जब पूरा हम सोलर सिस्टम बोलते हैं तो व्हाट आर द थिंग्स प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम? तो दैट इज द सन itself, sun, because all the planets are revolving around the sun. तो sun, 8 planets and their moons. So that is known as solar system. Is it clear? You can see this in the picture also. This is a picture of the solar system. This is the sun, and all the 8 planets, they are taking round of the sun. So these planets, they all are taking a round of the sun. Okay, so student, for their understanding, so every planet take a, जितने भी planets हैं वो क्या कर रहे हैं? सन का राउंड ले रहे हैं. और इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. ओके, द पाथ इन विच द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दैट इज नोन एज ऑर्बिट. और जितने भी इस प्लैनेट हैं सबकी अपनी ऑर्बिट्स हैं. ठीक है, सबके अपने अपने ऑर्बिट्स हैं. जैसे हमारी अर्थ, सन का फुल, ठीक है, जो हमारी अर्थ है, इट टेक 365 days 6 hours. Okay, our earth take 365 days and 6 hours to complete one round of the sun. तो इसी से आप इमेजिन कर सकते हो बेटा कि सन कितना बिग होगा. ठीक है, इससे आप ये इमेजिन कर सकते हैं बेटा कि सन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है अर्थ से. क्योंकि अर्थ को 300, इसीलिए 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं ना. देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द मंथ. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. So these are the name of the different months, and these 1 year having how many months? 12 months. ठीक है, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं बेटा? 12 मंथ्स होते हैं. ठीक है, सो अर्थ टेक 365 days 6 hours टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द सन. सन का एक कंप्लीट राउंड लेने में सोचो अर्थ को कितना 1 ईयर लग जाता है और 6 आवर. दैट इज द रीजन. जस्ट इमेजिन कि सन कितना बिग होगा. ठीक है, और आप सोच रहे होंगे अब ये 6 आवर्स क्या हुआ. ठीक है, आप लोग ने सुना होगा लीप ईयर. लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर में 366 डेज होते हैं. लीप ईयर हैविंग 366 डेज, आपने सुना होगा. तो हाउ 1 डे इंक्रीज. सो आपने देखा होगा फरवरी में कितने डेज होते हैं? फरवरी में
28 डेज। और इन अ लीप ईयर फरवरी में डे कितने हो जाते हैं? 29 डेज। 1 डे क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा डे जो बनता है ये फरवरी के मंथ में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ठीक है। सो हाउ दिस इज पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल होता है बेटा? देखो, अर्थ को 365 डेज 6 आवर में 1 कंप्लीट राउंड लेता है। तो अर्थ जब 4 राउंड लेगा, लीप ईयर कब आता है? एवरी 4 ईयर्स के बाद आता है। मान लो 1 राउंड में 365 6 आवर्स लगा, ठीक है। उस 6 आवर्स एक्स्ट्रा ये आ गए आपके 6 आवर्स। एक राउंड और लिया तो प्लस 6 आवर्स फिर हो गया। एक राउंड और लिया तो प्लस 6 आवर्स फिर हो गया। अब एक राउंड और लिया तो प्लस 6 आवर फिर हो गया। ठीक है, 4 टाइम। अब इन सबको प्लस कर दो। 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24 आवर। क्या आ गया आंसर? 24 आवर्स। What the answer become? 24 hours. And as you know, 1 day में कितने आवर्स होते हैं? 1 day equal to 24 आवर्स। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, मैम ने आपको बताया होगा कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। सो डैट आफ्टर एवरी 4 ईयर 1 एक्स्ट्रा डे जो होता है दैट इज एडेड इन द मंथ ऑफ फरवरी। इसलिए आफ्टर 4 ईयर फरवरी में 29 डेज होते हैं और ऐसे कितने होते हैं? 28 डेज होते हैं। रीजन इज क्लियर आई होप, क्योंकि 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 इट बिकम 24 and 24 hours make 1 day and this extra day is added in the month of February. Okay, so in this manner in a leap year we having 366 days. ठीक है, तो एक छोटी सी रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। मैंने अभी क्या बताया आपको? हमने आज का टॉपिक में पढ़ा सोलर सिस्टम। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में जब हमने बात की तो सन है, तो सन है, प्लैनेट्स हैं, तो सन क्या है? सन इज अ स्टार। वाई हमने इसको स्टार की कैटेगरी में इसलिए रखा है बिकॉज इट हैज इट्स ओन लाइट। ओके, बिकॉज इट इज मेड ऑफ द बर्निंग गैसेस। ये गैसेस कंटिन्यूस बर्न कर रही हैं और जिससे कि लाइट और हीट प्रोड्यूस हो रही है। जैसे आपने कभी देखा होगा, लकड़ी वकड़ी जलाते होगे तो पहले के समय में क्या, जब लाइट नहीं होती थी तो रात में लोग क्या करते थे? केरोसिन ऑयल ये सब जलाते थे ना। जैसे फेस्टिवल होता है तो आप लोग दिया जलाते हो, मोमबत्तियां जलाते हो, कैंडल्स बर्न करते हो ना, तो उससे लाइट भी प्रोड्यूस होती है और बर्न करने से हीट भी प्रोड्यूस होती है। दोनों चीज होती है। दैट इज द रीजन सन हैज इट्स ओन लाइट एंड इट हैज हीट आल्सो। इट लाइट एंड हीट बोथ द थिंग्स वी गेट फ्रॉम द सन। सन से हमको लाइट भी मिल रही है और सन से हमको हीट भी मिल रही है। इज इट क्लियर? सो दैट इज द रीजन सोलर सिस्टम। अब इसे फैमिली ऑफ सन इसलिए बोला क्योंकि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं दे आर रिवॉल्विंग राउंड द सन। ठीक है, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं दे आर रिवॉल्विंग राउंड द सन। ये मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं आपके यूनिवर्स में, लेकिन उन स्टार्स के रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं ये प्लैनेट। ये किसको रिवॉल्व कर रहे हैं? सन को कर रहे हैं। इसलिए हमने द फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम बोला। जो 8 प्लैनेट जो सन के चारों ओर घूम रहे हैं उसी को हमने उन्हें क्या नाम दिया? सोलर सिस्टम का नाम दिया। ठीक है, फिर एक न्यू टर्म जो कि तुम्हारे बुक में नहीं दिया है, दिस इज ऑर्बिट। ये आपके बुक में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। द पाथ ऑन विच दीज प्लैनेट मूव, एक फिक्स्ड पाथ पे प्लैनेट मूव करते हैं। ठीक है, एक फिक्स पाथ पे सारे प्लैनेट राउंड लगा रहे हैं, किसका? सन का। एंड दिस पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। सब प्लैनेट्स की अपनी अपनी ऑर्बिट्स हैं, अपनी अपनी फिक्स पाथ में मूव करते हैं, नहीं तो ये कोलैप्स कर जाएंगे, लड़ जाएंगे आपस में। इसलिए ये सारे अपनी अपनी पाथ में राउंड ले रहे हैं, किसका? सन का ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हाउ मच टाइम इज टेकन बाय आवर अर्थ टू कंप्लीट 1 राउंड। So that is 365 days 6 hours. Okay, thank you student.